السلام علیکم ناظرین، معجزہ شکل قمر کا دوسرا ایپیسوڈ لے کر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا۔ جب حاجی رتن سین نے اپنا نام سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے سنا تو وہ قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا، اور محققین اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ 3 سال تک حضور کی خدمت میں رہا اور وہاں پر اس نے حج کیا اور حاجی رتن سین کہلوایا۔ چونکہ اب وہ مسلمان ہو چکا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری نے تجویز پیش کی کہ اس کا نام بدل دیا جائے، تو سرکار انبیاء نے کہا کہ نہیں، اس کا نام یہی رہنے دیجیے، اور اسی نام سے وہ حاجی رتن کے نام سے مشہور ہوا۔ اب حاجی رتن جب سرکار انبیاء سے رخصت ہوا اور کہنے لگا کہ راجہ کنور سین آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہے تو مجھے واپس جانا ہے، تو سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ وہ مجھ تک نہ پہنچ پائے گا، اور راستے میں ہی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ سن کر رتن سین کو صدمہ بھی پہنچا ہوگا، اور سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبا کے 2 ٹکڑے اس کو دیے۔ اس کو 2 ٹکڑے دیے اور کہا کہ جب راجہ کنور سین کا انتقال ہو جائے تو یہ ایک ٹکڑا جب اس کو دفن کرو تو اس کی چھاتی پہ رکھ دینا، اور دوسرا ٹکڑا رتن سین کے لیے دیا۔ اب وہ روانہ ہوا اور واپس آ کر سارا ماجرا راجہ کنور سین کے گوش گزار کیا۔ راجہ کنور سین ملک عرب کی طرف سرکار انبیاء کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا، اور سرکار انبیاء کی وہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی جب وہ قندھار کے مقام پر انتقال کر گئے۔ اب رتن سین نے کے حکم پر اس کو واپس کھاوڑی ریاست میں لایا گیا، جو ضلع مراد آباد یو پی ضلع مراد آباد کی ریاست ہے۔ وہاں لایا گیا اور وہاں پر لا کر اس کو دفنا کر اس نے ایک پراکرت زبان میں ایک کتبہ کنندہ کروایا اور معجزہ شکل قمر کے بارے میں مختصراً تحریر کیا۔ وہ تحریر کر دیا۔ بعد میں رتن سین کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ جہاں پر راجہ کنور سین کو دفن کیا گیا وہ درگاہ معجزہ شکل قمر کے نام سے مشہور ہوئی، جو کہ محکمہ مال کے کاغذات میں حاجی رتن سین متوفی کے نام وقف محکمہ مال کے کاغذات میں اب بھی موجود ہے۔ اب میں چونکہ اس پر ریسرچ کر رہا تھا، میں نے یہی باتیں اکثر اپنے آفس میں کیا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک میرا کولیگ تھا، اس نے کہا میرا سسرال مراد آباد میں رہتا ہے، میں جاؤں گا تو میں پھر وہاں پر دیکھوں گا کہ شاید کوئی میں وہاں پر درگاہ ایسی مجھے مل جائے۔ بہرحال وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر گیا۔ میں نے پوچھا تم نے وہاں پر تحقیق کی جا کے؟ اس نے کہا جی میں نے کی ہے تحقیق، اور میں وہاں پر گیا بھی ہوں۔ وہاں پر ایک مزار ہے، وہاں پر
सब लोग आते हैं और अपना माथा टेकते हैं, उसमें कोई तखसीस नहीं है कि कौन मुस्लिम है, और वहाँ पर मुरादें बड़ी पूरी होती हैं। तो ये मेरी ज़ाती तहकीक थी, लेकिन चूँकि ऐसे हालात हैं कि ख़ुद जाकर बंदा तहकीक नहीं कर सकता, ना ही मेरे वसाइल इतने हैं कि मैं उसकी तहकीक कर सकूं। और अब इसमें चंद तजादात भी अल्लामा तालब जौहरी दर्ज फरमाते हैं। अल्लामा तालब जौहरी साहब फरमाते हैं अपनी किताब में कि मौजज़ा शक्ल कमर का वाक़या मक्का में हुआ, जबकि रतन सेन मदीने में जाकर सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। इस दौरान कई सालों का वक्फा है, और अब उसमें बताते हैं कि एक तो ये तजाद है, दूसरा वो कुतबा 1931 में दरियाफ्त हुआ। वो दरियाफ्त हुआ कुतबा तो अमरोहा के दानिशमंदान में वो लिखते हैं कि सादक हुसैन और इर्तज़ा के हमरा वो वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस कुतबे को देखा, और वो प्राकृत ज़बान में था, और एक पंडित ब्रह्मानंद को की खिदमत हासिल की और उसे कहा कि इसका तर्जमा कर दो। अब ये सादक हुसैन साहब लिखते हैं, अल्लामा तालब जौहरी साहब कहते हैं कि अल्लामा सादक हुसैन की ज़बानी ये पता चलता है कि जो कुतबे पे दर्ज था वो ये दर्ज था कि मैं अरबी बोल लेता हूँ, जबकि मेरी मादरी ज़बान प्राकृत है, और मैं 3 साल तक सरकारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उसने उस दौरान उम्रा अदा किया, हज किया, चूँकि कुतबे पर तहरीरें मुख्तसरन होती हैं, और उसने एक वहाँ के उसमें ये भी था कि भोजपत्र पर उसने ये तहरीर जितने दिन वहाँ रहा वहाँ के वाक़यात भोजपत्र पर तहरीर करता रहा और एक किताब की शक्ल में वापस लाया। वहाँ पर आकर पता चला कि वो किसी के पास अभी तक महफूज है, लेकिन सादक हुसैन साहब जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने दरूग बयानी से काम लिया, और अभी तक ये एक है। अभी तक अल्लामा तालब जौहरी फरमाते हैं कि ये अभी तक काबिल गौर तलब बात है, क्योंकि इसमें कुछ तजादात मिलते हैं। तजादात ये मिलते हैं कि इसमें ज़माने का फ़र्क आ जाता है, जो उन्होंने बयान किया कि मक्के में हुआ मौजज़ा और मदीने में रतन सेन मिला। अब असहाब में अगर देखा जाए तो सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में रतन सेन नाम के एक आध कम या ज़्यादा, मैं ये नहीं, 7 असहाब हैं जिनका नाम रतन सेन है। अब वो कौन सा सहाबी है जो अहले हिंद से ताल्लुक़ रखता था और 3 साल तक हजूर की खिदमत में रहा, और वहाँ पर इसी दौरान वो अपने तमाम वाक़यात एक भोजपत्र पर तहरीर भी करता रहा। ये गौरतलब बात है, और इस पर अभी मज़ीद तहकीक होना बाकी है। ये किताब आज़मपुर के फजल शाह नामी शख्स तक ये किताब मौजूद थी चंद साल पहले तक। उसके बाद इसका नहीं पता कि जो वाक़यात
रतन सेन ने लिखे वो क्या थे। नाजरीन, लेकिन यहाँ पर एक बात तय हो गई, एक बात का फैसला हो गया कि ये मोजज़ा सरकारी अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दिखाया, उन्हीं का मोजज़ा है। ये उन्हीं में इतनी रूहानी ताकत थी, इतनी जंगें लड़ी, इस्लाम फैलाया मोहब्बत से, प्यार से, और लोग बहतान तराशियाँ करते रहे और उन बहतान तराशियों के जवाब में उल्टे सीधे सवालात करते रहे। और सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर लाखों दुरूद व सलाम, उन्होंने उनके कहने पर बहुत सारे मोजज़ात दिखाए, जिनमें हाथ पर पत्थरों का बोलना, जिनको हम ये जेमस्टोन्स कहते हैं, इनका जिक्र कुरान में भी है, मरजान का जिक्र है, मोती का जिक्र है। इस तरह से ये चीज़ें कुल्ली तौर पर वाज़िया कर देती हैं कि ये मोजज़ात तकरीबन, अल्लामा तलब जौहरी साहब अपनी किताब में दर्ज करते हैं, तकरीबन 10,000 से ज़ायद मोजज़ात हैं जो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग के दौरान दिखाए, और वो हर एक के साथ शफ़क़त से पेश आते थे। जब किसी की इयादत के लिए जाते तो 3 दिन के लिए उसके घर से उनकी खुशबू रहती थी। नाज़रीन, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हूँ, और मैं अब आपके लिए कल से एक स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी का मेथड है, वो आपका हफ़्ता कैसा गुज़रेगा, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, आपका हफ़्ता किस तरह से गुज़रेगा, वो स्नैपशॉट एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है कि आपका दिन कैसा गुज़रेगा, हफ़्ता कैसे गुज़रेगा, महीना कैसे गुज़रेगा। वो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली दिलचस्प वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ताकि तमाम आपके पास मेरी वीडियोज़ आएँ और आप उससे इस्तिफ़ादा भी हासिल करें। उसमें आपको मैं सदक़ात के बारे में भी बताऊंगा, उसके बारे में मैं आपको जो हमारी शरीयत के मुताबिक है, ऐन मुताबिक है, वो चीज़ें भी बताऊंगा। और इसके अलावा आपको मैं मुख्तलिफ़ सियासतदानों के, आला शख्सियात के ज़ायक़ों पर भी नज़र दौड़ाऊँगा, और फिर तालिब इल्म जो इल्म नजूम को सीखना चाहते हैं, पराशरी सिस्टम जानना चाहते हैं, कृष्णा मूर्ति सिस्टम जानना चाहते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं, लाल किताब के मतलब कोई सवाल है, उसके मतलब कोई सवाल हो, तो मुझे लाइव चैट में मुझसे बात कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल पर दर्ज है, मुझसे रब्ता भी किया जा सकता है। रात 6 से लेकर रात 10 बजे तक आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं, और आपसे बात भी हो सकती है। अगर आप किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, किसी वजह से अननेसेसरी अनड्यू परेशानी आपके जहन पर सवार हुई है, या किसी पामिस्ट ने या किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको वहम डाल दिया है कोई, तो आप मुझे कंसल्ट करें, वो मैं आपको एक अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करूँगा और आपकी खिदमत करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।